بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے کراچی کے ممتاز علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، مفتی ندیم اقبال سعیدی صاحب، علامہ اشرف گورمانی صاحب، علامہ مفتی محمد رفیق حسنی صاحب، مولانا بلال سلیم قادری صاحب، علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب، علامہ مفتی عابد مبارک صاحب، علامہ ریحان امجدی صاحب، علامہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب، جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، علامہ سید مظفر شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، علامہ قاری عبد القیوم محمود صاحب، علامہ عقیل انجم، علامہ مفتی محمد وسیم، علامہ مفتی وسیم ضیائی، علامہ خالد کمال، علامہ احمد ربانی، علامہ رفیع الرحمان اور تمام ممتاز علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تاجر نمائندوں نے بھی آنا تھا لیکن وہ راستے میں ہیں۔ سب سے پہلے میں کراچی کے حالات کے تناظر میں بات کروں گا۔ اہل کراچی پر ایک قیامت گزر گئی جبکہ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات میں مصروف رہیں۔ یہ اہل کراچی کے ساتھ نہایت سنگ دلانہ رویہ ہے۔ حکومتوں کی نااہلی تو ہمارے ہاں ایک مسلم امر ہے، لیکن اس سال مانسون بارشوں کا سلسلہ بھی غیر معمولی رہا۔ بعض اخبارات کے مطابق 90 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ ایریاز کا لینڈ کنٹرول کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے، مگر ڈی ایچ اے میں اس کا انفراسٹرکچر بھی ناکام ثابت ہوا اور تاحال اس پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں پانی گھروں، دکانوں اور مساجد کے اندر چلا گیا۔ لوگوں کا گھریلو اور تجارتی ساز و سامان حتیٰ کہ بیٹیوں کا جہیز تک برباد ہوا۔ بعض علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو نکالا گیا۔ بعض مقامات پر مکان گرے اور مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ جانی نقصانات بھی ہوئے۔ بعض لوگوں کی لاشیں نالوں سے ملی۔ یہ انسانیت کے لیے ایک اذیتناک امر ہے۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں اپنا اپنا دامن جھاڑ کر دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتی رہیں۔ تقسیم تو کریں پانی۔ بلیم گیم کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض وفاقی وزراء نے کراچی کے دورے کیے لیکن فوٹو سیشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ یہ دکھی انسانیت کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ ہم اپنی دینی، ملی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کراچی کے علمیے پر توانا آواز بلند کریں۔ وزیر اعظم جناب عمران خان اور صوبہ سندھ کی حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کے علمیے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ شہر کا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے۔
सड़कें नाकारा हो चुकी हैं, सेवरेज लाइन का निज़ाम फेल हो चुका है, पानी की सप्लाई ज़रूरत से कम है, मोबाइल सर्विस, सड़कें, इंटरनेट और बिजली का निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और ऐसा लगता है कि के इलेक्ट्रिक को न वफाकी हुकूमत की कोई परवाह है, न हमारी आला अदालतों की। लोग हैरान हैं कि इस इदारे के पीछे कौन सी गैबी ताकत है कि हुकूमत उस पर हाथ डालने से गुरेज कर रही है, और कोई बाज पुरस भी नहीं हो रही। मनमाने बिल वसूल किए जा रहे हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और ख़यानत और धोखाधड़ी से अवाम से ली गई रकूम वापस होनी चाहिए। नालों, फुटपाथों और खाली जगहों पर तजावज़ात कायम की गई। KMC, KDA, वाटर बोर्ड, DMC, MDA और LDA के लैंड कंट्रोल के बाकायदा महकमे हैं, अफसरों की भरमार है। सवाल ये है कि उनके होते हुए ये सब कुछ कैसे हुआ। नीज़ कौन सी सियासी और हुकूमती क़ुव्वतें हैं जिनकी छतरी तले ये काम होते रहे और कानून अंधा और बहरा हो गया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सेवरेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिक सिस्टम वगैरह 2.5 करोड़ की आबादी के लिए हरगिज़ नहीं बनाया गया था, न इसके बनाते वक्त लाखों की तादाद में फ्लैट्स का कोई तसव्वुर था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले और तोसी दिए बगैर ये सब कुछ होता रहा। हमारा वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि कराची की बहाली के लिए फौरी और देरपा मंसूबे बनाए जाएं। हमारी नज़र में फौरी तरजीहात ये हैं। नंबर 1, वज़ीर आज़म कराची की तारीख़ी तबाही के इज़ाले और बहाली के लिए तारीख़ी पैकेज का ऐलान करें, और अहले कराची के लिए कोरोना वायरस प्लस से भी ज़्यादा बड़ी आफत है, लिहाजा कोरोना के लिए जो पैकेज 144-45 अरब का इमदाद के लिए ऐलान किया गया था, कराची उससे ज़्यादा बड़े पैकेज की हकदार है। नंबर 2, टूटी फूटी सड़कों और गड़ों की मुरम्मत फौरी तौर पर की जाए, वरना ये सड़कें खंडरात में तब्दील हो जाएंगी और हादसात का भी सबब बनेंगी। नंबर 3, शहर की मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक सेवरेज लाइनें बिछाई जाएं जो बारिश के पानी का दबाव बर्दाश्त कर सकें। मौजूदा सेवरेज लाइनें आए दिन जा बजा चौक हो जाती हैं और पानी उबल कर सड़कों पर बहता रहता है और सड़कों की बर्बादी का सबब बनता है। नंबर 4, के इलेक्ट्रिक के तरसीली निज़ाम को शहर की ज़रूरतों के मुताबिक बनाया जाए, जो हर बारिश और हर मौसम में कारआमद रहे, और इस बात की भी तहकीक की जाए कि के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तानी बैंकों से सुकूक के एवज़ जो अरब रुपए ले रखे हैं वो कहाँ खर्च हुए। जब तक तहसील टाउन, हॉक्स बे और स्कीम 33 का तरक्याती काम मुकम्मल न हो जाए, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और निजी पार्टियों पर हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की पाबंदी आयद की जाए, और MDA और LDA के माली मामलात का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। 2 साल पहले नई स्कीम के नाम पर MDA ने पब्लिक से जो अरबों रुपए वसूल किए जाए वो कहाँ हैं। जब तक नंबर 6, कब्रिस्तान, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पार्क के लिए आबादी के तनासब से रिफाही प्लाट न रखे जाएं, किसी भी सरकारी या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की मंजूरी न दी जाए। नंबर 7, गुज़श्ता अदवार में चाइना कटिंग के ज़रिए फुटपाथों, पार्कों और नालों पर कब्जे किए गए हैं, इनकी शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। नंबर 8, हालिया बारिशों में जो लोग जाँ बहक हो चुके हैं उनके लवाहिकीन को कौमी मेयार के मुताबिक ज़र-ए-आनत दिया जाए,
20-20 लाख के हिसाब से मुख्तलिफ मौक़े पर दिए गए हैं। कराची वाले भी इसी के हकदार हैं। नंबर 9, नालों पर से तजावुज़ात ख़त्म करके उनको अपनी असली शक्ल में बहाल किया जाए और मुतासरीन की बहाली का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। नंबर 10, कराची के नालों के बंद होने का मसला कभी हल नहीं होगा जब तक कि शहर के गली कूचों से कचरा उठाने और शहर से बाहर ले जाकर मुकर्रर मकाम पर डंप करने का इंतज़ाम न हो। जब तक ये नहीं होगा ये शैतानी चक्कर चलता रहेगा। नीज़ गली कूचों और पार्कों में कचरा फेंकने को ताज़ीरी जुर्म करार दिया जाए और इसके लिए मुनासिब सज़ाएँ मुकर्रर किए जाएँ। लोगों को कानून की ताकत से शहरी अक़दार का पाबंद किया जाए। नंबर 11, ये सबसे हम सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन के मलिक रियाज हुसैन साहब से जो 460 अरब रुपए वसूल करने के अहकामात जारी किए हैं उनका ताल्लुक कराची की ज़मीनों से है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद से हमारी अपील है कि एक बाइख्तियार ट्रस्ट बनाकर इस रकम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तरक्कियात पर खर्च किया जाए। आपका ताल्लुक कराची से है, ये कराची और अहले कराची पर आपका एहसान होगा। नंबर 12, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि कराची सर्कुलर रेलवे को अगर सोने की पटरियों पर भी चलाया जाए तो ये बेफैद रहेगी। ये साबिक सदर मोहम्मद अयूब खान मरहूम के ज़माने में बनी थी और उस वक्त के हालात के तहत कराची की ज़रूरियात को किसी हद तक पूरा करती थी, मगर 1970 और 80 के अशरे में ही ये नाकाम हो चुकी थी। रेलवे की बोगियां खाली चलती रहती थी। ये रूट अब कारामद नहीं है। कराची की ज़रूरत लाहौर की ऑरेंज ट्रेन की तरह या दुबई की फ्लाई ओवर ट्रेन की तरह जदीद ट्रेन का इंतज़ाम है जो मेन शाहराहों पर चले, लोग अपने करीबी स्टेशन से उसमें बैठें और अपनी मंजिल पर जाकर उतरें। सिंध हुकूमत ने सूबा सिंध के कई अजला समेत कराची को आफतज़दा करार दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस ऐलान का फ़ायदा कराची, हैदराबाद और सिंध के मुतासरा अजला को क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी वजाहत मतलूब है। बरसों से ज़ेर इल्तिबा ग्रीन लाइन बस मंसूबे को फौरी तौर पर पाए तकमील तक पहुँचाया जाए।